السلام علیکم، ٹی وی ٹوڈے کے ساتھ میں ہوں جواد باقر۔ اب خبروں کی تفصیلات۔ پاکستان کا 74واں یوم آزادی آج قومی جذبے کے ساتھ منایا جا رہا ہے۔ مساجد میں نماز فجر کے بعد ملک و قوم کی سلامتی اور ترقی کے لیے دعائیں کی جائیں گی۔ وفاقی دارالحکومت میں 31 اور صوبائی دارالحکومت میں 21 توپوں کی سلامی۔ دن کے آغاز پر ملک بھر میں مختلف مقامات پر پرچم کشائی کی تقریبات بھی منعقد کی جائیں گی۔ 14 اگست 1947 کے دن بابائے قوم قائد اعظم محمد علی جناح کی قیادت میں برصغیر کے مسلمانوں نے لاکھوں قربانیاں دے کر ایک علیحدہ مملکت خداداد کی شکل میں دنیا کے نقشے پر ایک آزاد اسلامی جمہوری ریاست کا قیام عمل میں لایا، جس کا مقصد انگریز سامراج سے آزادی حاصل کر کے ایسی ریاست قائم کرنا تھا جہاں برصغیر کے مسلمان اپنی زندگیاں اپنے اسلامی طور طریقوں، روایات اور اقدار کے تحت آزادانہ گزار سکیں۔ اس مملکت خداداد کا خواب علامہ اقبال نے دیکھا اور قائد اعظم محمد علی جناح نے اسے تعبیر دی۔ ہر سال ملک کے تمام چھوٹے بڑے شہروں، قصبوں، دیہاتوں میں جشن آزادی شایان شان طریقے سے منایا جاتا ہے۔ ملک کا 74واں یوم آزادی اس عزم کی تجدید کے ساتھ منایا جائے گا کہ اس مملکت خداداد پاکستان کو ترقی اور خوشحالی کی نئی منازل پر پہنچانے کے لیے کوئی دقیقہ فروغ گزاش نہیں چھوڑا جائے گا۔ یوم آزادی کے موقع پر مزار قائد پر اعزازی گارڈ کی تبدیلی کی پروقار تقریب ہوگی۔ آج پاکستان نیول اکیڈمی کے کیڈٹس مزار قائد پر اعزازی گارڈ کے فرائض سنبھالیں گے۔ پاکستان نیول اکیڈمی کے کیڈٹس ہر سال 14 اگست کو یہ ڈیوٹی سنبھالتے ہیں۔ اعزازی گارڈ کی تعیناتی کی تقریب کے مہمان خصوصی کمانڈنٹ پاکستان نیول اکیڈمی قمر مشتاق احمد ہوں گے۔ اعزازی گارڈ میں 2 دستے شامل ہیں۔ پاکستان کے جشن آزادی کے موقع پر ملک بھر کی سرکاری غیر سرکاری عمارتوں پر چراغاں، شہر شہر، گلیاں گلیاں سبز ہلالی پرچموں کی جھنڈیوں سے سج گئی۔ محب وطن پاکستانیوں نے گھروں پر پرچم لہرا دیے۔ ملک کا 74واں یوم آزادی اس عزم کی تجدید کے ساتھ منایا جائے گا کہ اس مملکت خداداد پاکستان کو ترقی اور خوشحالی کی نئی منازل پر پہنچانے کے لیے کوئی دقیقہ فروغ گزاش نہیں چھوڑا جائے گا۔ وزیر کشمیری حریت پسند رہنما سید علی گیلانی کو 14 اگست کو نشان پاکستان کا اعزاز دیا جائے گا۔ وزیر اعظم پاکستان عمران خان نے آزاد کشمیر کی قانون ساز اسمبلی سے خطاب کے اعزاز دینے کا اعلان کیا تھا۔ سینیٹ نے بزرگ حریت رہنما سید علی گیلانی کی قربانیوں کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے قرارداد منظور کی تھی۔ اسرائیل اور متحدہ عرب امارات کے مابین امن معاہدہ۔ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اعلان کرتے ہوئے کہا کہ دونوں ممالک نے باہمی تعلقات استوار کرنے پر اتفاق کا اظہار کیا۔ دونوں ممالک کے مابین تعلقات کو معمول پر لانا ایک بہت بڑی پیش رفت ہے۔ یہ ہمارے 2 عظیم دوستوں کے مابین تاریخی امن معاہدہ ہے۔ معاہدے کے تحت اسرائیل مزید فلسطینی علاقے ضم نہیں کرے گا۔ 2 طرفہ تعلقات کے لیے دونوں ممالک مل کر روڈ میپ بنائے گے۔ معاہدے کے مطابق امریکہ اور متحدہ عرب امارات اسرائیل سے دیگر مسلم ممالک سے بھی تعلقات قائم کرنے کے لیے مل کر کام کریں گے۔ اسرائیل سے امن کرنے والے ممالک کے مسلمان مقبوضہ بیت المقدس آ کر مسجد اقصی میں نماز پڑھ سکیں گے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ٹویٹر پر پوسٹ میں کہا کہ آج ہمارے 2 عظیم دوستوں اسرائیل اور متحدہ عرب امارات کے درمیان تاریخی امن معاہدہ ہو گیا۔ برطانوی میڈیا کے مطابق معاہدے کے تحت اسرائیل مقبوضہ مغربی کنارے کے بڑے حصوں کو ضم کرنے کے اپنے منصوبوں کو معطل کر دے گا۔ ڈی جی آئی ایس پی آر بابر افتخار کہتے ہیں کہ بھارت 5 کی بجائے 500 رافیل طیارے بھی خرید لے۔ افواج پاکستان دشمن کو بروقت جواب دینے کے لیے ہمہ وقت چوکس اور تیار ہے۔ بھارت نے اندرونی ناکامیوں کو چھپانے کے لیے خطے کا امن داؤ پر لگا دیا۔ 5 رافیل کا سفر جیسے فرانس سے ہندوستان تک کور کیا گیا، وہ دکھاتا ہے کہ ان کی انسیکیورٹیز کا لیول کیا ہے۔ بٹ بہرحال 5 آ جائیں، 500 آ جائیں، وی آر فائن، وی آر ایبسلیوٹلی ریڈی، اور الحمدللہ ہمیں اپنی استطاعت پہ کسی قسم کا شک نہیں ہے۔ اور پچھلے 2 سالوں میں تو جو ڈیفنس بجٹ ہے اس نے جو ہم ایک انفلیشن کا ایک کوشن رکھتے تھے وہ بھی نہیں لیا۔ لیکن اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ ہماری دفاعی تیاریوں میں کوئی کمی آ گئی ہے۔ الحمدللہ ایون ود دیز ریسورسز وی آر ایبسلیوٹلی ریڈی ٹو ٹیک آن آر اینیمیز۔ الحمدللہ ہماری تیاری میں کوئی کمی نہیں آئی ہے، ہم بھرپور طریقے سے تیار ہیں۔ سو رافیل لے آئیں، S-400 لے آئیں، لے آئیں۔ وی ہیو آر اون preparedness and we have our own answers.
I mean, he's a specific case. After Second World War, for the first time, a serving officer of any country has been found involved in another country in terrorist activities. So it's as simple as that. As far as giving him consular access is concerned, that's a requirement of the international law, International Court of Justice. We are just abiding by that. Whatever the talk of the town, as if we are trying to, go into some deal on that, absolutely not. Absolutely not. There should be no doubt about it. We are just fulfilling. सीपैक की सिक्योरिटी पर किसी किस्म का कोई समझौता नहीं होगा। सीपैक के साथ हमारा ताल्लुक सिक्योरिटी की हद तक ही है। पाकिस्तान के नए सियासी नक्शे को अक़वाम मुत्तहिदा में भी ले जाया जाएगा। सऊदी अरब के साथ बरादराना ताल्लुकात पर फ़ख्र है। दुश्मन कुव्वतों को अफ़वाज पाकिस्तान और अवाम में खलीज पैदा करने नहीं देंगे। हुकूमत पाकिस्तान उसको देख रही है। हमारा उसके साथ ताल्लुक सिक्योरिटी के मद में ही है। फ़ौज का जो मैं बात कर रहा हूँ, फिज़िकल जो हमारी एप्लीकेशन है उसमें, और उसकी सिक्योरिटी को मज़ीद एनहांस किया गया है। उसके ऊपर मज़ीद इक्विप किया गया है। उसकी सिक्योरिटी पे मामूर जो हमारे फॉर्मेशंस हैं उनको, और उसको जितना फ़ाल बनाया जा सके हम कर रहे हैं। और इट्स अ कॉन्टीन्यूस प्रोसेस, इट्स अ वेरी बिग प्रोजेक्ट। और ये जिस तरह डेवलप कर रहा है, जिस तरह प्रोग्रेस कर रहा है, उसी तरह इसकी सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट्स भी बढ़ती जा रही हैं। सो हम अल्हम्दुलिल्लाह वी आर अवेयर ऑफ दैट, और उसी के मुताबिक इसकी कैपेसिटी जो सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर जो हमने उसका इस्टेब्लिश किया है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं कि सूबा सिंध के हवाले से वफाक की नीयत ख़राब है। अगर कराची पर कब्जा किया गया तो गैर आइनी होगा। अगर गैर आइनी तरीक़ाकार को अदालती आड़ दी गई तो ये एक बार फिर शहीद भुट्टो की तरह धरती पर हमला होगा। हम बहुत शुक्रगुजार है नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी का। देर आए दुरुस्त आए, आए तो सही। और हम मिल के जिस तरीके से जिस हद तक अपने मिसाइल के थ्रू मुकाबला कर सकते थे, कर भी दिए थे, और आगे जाके भी इंशाल्लाह ताला करेंगे। हम लेकिन ये नहीं चाहते कि जब हम मुश्किल में हैं, हमारे अवाम मुश्किल में हैं, तो वफाक का नीयत साफ होना चाहिए। ये अनफॉर्चुनेट है कि इस सूबे में रहने वाले अवाम वफाक के जो कोशिश से हैं उसमें कुछ बदनीयती नजर आता है। सियासत अब नेशनल डिजास्टर्स पे, नेशनल क्राइसिस में इस तरीके से नहीं खेला जाता कि जो वो अवाम इस दुख से गुजर रही हैं, हम उनसे उनका हक कैसे छीन सकें, हम उनसे इस मुश्किल में कैसे और मजीद वसाइल ले सकें। ये बदनीयती आपका एफर्ट्स को भी अंडरमाइन करेंगे। जो लोग ऑन ग्राउंड काम कर रहे हैं उनका एफर्ट्स को भी अंडरमाइन करेंगे, और आपका नेशनल जो। और अब खबर यह है कि इंतजार की घड़ियां आखिरकार खत्म हो ही गईं। वजीर आजम ने BRT मंसूबे का इफ्तिताह कर दिया। यह पाकिस्तान में सबसे बेहतरीन मेट्रो बस सर्विस मंसूबा है जो 3rd जनरेशन है, जिसके असरात पेशावर में पड़ेंगे। मुझे इस मंसूबे पर तहफ़्फ़ुज़ात है, लेकिन मैं आज परवेज़ खटक को खराज तहसीन पेश करता हूँ। वजीर आजम ने कहा कि हम गलत थे और आप दुरुस्त थे। देखते हैं इस रिपोर्ट में। मैं आज महमूद खान आपको और पख्तूनख्वा की गवर्नमेंट को मुबारक देना चाहता हूँ। ये जो आपने प्रोजेक्ट बनाया, ये पाकिस्तान में सबसे बेहतरीन मेट्रो बस का प्रोजेक्ट है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने BRT मंसूबे का इफ्तिताह कर दिया। इस मौका पर कहा कि ये पाकिस्तान का सबसे बेहतरीन मेट्रो बस सर्विस मंसूबा है जो 3rd जनरेशन है, जिसके असरात पेशावर पर पड़ेंगे। ये पाकिस्तान में सबसे बेहतरीन मेट्रो बस का प्रोजेक्ट है, यानी ये 3rd जनरेशन, तो यानी कि वो मेट्रोज के अंदर ये हाई लेवल का प्रोजेक्ट है। और इसलिए इसके असरात पेशावर में इसलिए पड़ेंगे क्योंकि पेशावर में एक ही आपकी मेन आर्टरी है, GT रोड से लेके तोरखम तक जाती है। आपका बेसिक आर्टरी को ठीक कर दिया, इससे आपके सारे जो ट्रैफिक के असल मसले थे वो हल हो जाते हैं। इमरान खान ने कहा इन्हें इस मंसूबे पर तहफ़्फ़ुज़ात थे, लेकिन वो आज परवेज़ खटक को खराज तहसीन पेश करना चाहेंगे कि हम गलत थे और वो दुरुस्त निकले। मैं आज ये ख़ास कहना चाहता हूँ कि मुझे इसके ऊपर रिजर्वेशंस थी, और मैं आज परवेज़ खटक को ख़ास खराज तहसीन पेश करना चाहता हूँ। हमें हमेशा कहा कि जब ये प्रोजेक्ट बन जाएगा
तो तब तुम्हें पता चलेगा इसकी अहमियत। वजीर आजम ने सरदार गढ़ी स्टेशन तक बस का सफर किया। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा शाह फरमान और वजीर आला महमूद खान भी मौजूद थे। खिताब करते हुए वजीर आजम ने कहा कि हर प्रोग्राम का मकसद ये होना चाहिए कि आम आदमी की जिंदगी को कैसे बेहतर किया जाए। हमारी जो गवर्नमेंट और बाकी गवर्नमेंट्स में क्या फ़र्क होना चाहिए, जो भी हम प्रोग्राम करें ना, उसमें हमारा जो सबसे बड़ी अहमियत होनी चाहिए कि आम आदमी की ज़िंदगी कैसे बेहतर होती है। और ये जो आपने 10 रुपये टिकट रखा है मिनिमम, और 10 रुपये से जो ऊपर लेके जा रहे हैं 50 रुपये तक, ये हर कोई अफोर्ड कर सकता है। BRT का संग बुनियाद अक्टूबर 2017 में रखा गया। तकमील के लिए 6 माह की डेडलाइन दी गई। ताहम इस दौरान कमोबेश 8 मरतबा मंसूबे के इफ्तिताह के हवाले से डेडलाइन दी गई। इब्तदाई तखमीना 49 अरब रुपए था, जिसकी लागत 71 अरब रुपए से तजावुज कर गई और बिला आखिर पेशावर BRT का वज़ीर आज़म इमरान खान ने एहसास नशोनुमा प्रोग्राम का बाकायदा इजरा कर दिया। मोहम्मद खसूसी सानिया निश्तर ने वज़ीर आज़म को एहसास नशोनुमा प्रोग्राम पर ब्रीफिंग दी। एहसास नशोनुमा मुल्क की तारीख में स्टंटिंग की रोकथाम का पहला हुकूमती प्रोग्राम है। 3 साला नशोनुमा प्रोग्राम का बजट 8 अरब 52 करोड़ रुपए है। मुस्तहिक़ीन को सेहत बख्श ग़ज़ा की फराहमी के साथ सहमाही नशोनुमा वजीफ़ा भी दिया जाएगा। बच्चियों के लिए 2000 रुपये, जबकि बच्चों के लिए 1500 रुपये सहमाही वजीफ़ा दिया जाएगा। मरीम नवाज की पेशी के वक्त नैब ऑफिस पर पथराव और लड़ाई झगड़े के मुकदमे में गिरफ्तार मुस्लिम लीग नून के तमाम कारकुनान की जमानतें मंजूर, रिहाई का हुक्म। अदालत ने 50-50 हज़ार रुपये के मचलकों के एवज मुस्लिम लीग नून के गिरफ्तार 58 मुल्जिमान की दरख्वास्त से जमानत मंजूर कर ली। मुल्जिमान की जानिब से वकील फरहाद अली शाह पेश हुए और मौक़िफ़ इख्तियार किया कि मुल्जिमान को सियासी केस में नामजद किया गया। मुल्जिमान पर दर्ज करदा FIR झूठी और बेबुनियाद है। वकील का कहना था कि मुल्जिमान से किसी किस्म की कोई रिकवरी नहीं होनी है, लिहाजा मुल्जिमान को जेल में कैद रखने का कोई जवाब नहीं। वकील ने अदालत से इस्तदा की कि मुल्जिमान की जमानतें मंजूर करके रिहाई का हुक्म दिया जाए। मुल्जिमान जमानती मुचलके जमा करवाने के लिए तैयार हैं। दूसरी जानिब सरकारी वकील ने मुल्जिमान के केस का रिकॉर्ड अदालत में पेश किया। सरकारी वकील ने मुस्लिम लीग नून के कारकुनान की जमानत की मुखालफत करते हुए मौक़िफ़ इख्तियार किया कि मुल्जिमान को जाए वक़ुआ से गिरफ्तार किया गया है। ताहम अदालत ने प्रोसिक्यूशन के दलाल सुनने के बाद 50-50 हज़ार रुपये के मचलकों के एवज मुल्जिमान की जमानत मंजूर करते हुए रिहाई का फैसला सुना दिया। सरबराह पाक फ़ज़ाइया एयर चीफ मार्शल मुजाहिद अनवर खान का ऑपरेशनल एयरबेस का दौरा। एयर चीफ ने JF तैयारे में ऑपरेशनल ट्रेनिंग में मिशन में हिस्सा लिया। एयर चीफ का कहना था कि JF 710 की पाक फ़ज़ाइया में शमूलियत पाक फ़ज़ाइया की जदीदियत को बरकरार रखने में मुआवन साबित होगी। पाक फ़ज़ाइया का हर फर्द हमारे बहादुर सपूतों की वरासत का अमीन है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा 16 अगस्त को सऊदी अरब का दौरा करेंगे। DGISPR मेजर जनरल बाबुर इफ्तिखार के मुताबिक आर्मी चीफ का दौरा पहले से तयशुदा है। आर्मी चीफ का दौरा अस्करी मामलात के हवाले से होगा। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा सऊदी हुकाम से मसला कश्मीर और मुआशी मामलात पर भी बातचीत करेंगे। पाक चीन इक़्तिसादी राहदारी अथॉरिटी के चेयरमैन लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड आसिम सलीम बाजवा ने कहा कि ML1 की मंजूरी पर चीनी हुकूमत की जानिब से खुशी का इजहार किया गया। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड आसिम सलीम बाजवा ने अपनी ट्वीट में बताया कि पाकिस्तान में तैनात चीनी सफीर जाओ जिंग ने CPEC अथॉरिटी का दौरा किया और एक्निक की जानिब से ML1 मंसूबे की मंजूरी पर चीनी हुकूमत की जानिब से खुशी का इजहार किया। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड आसिम सलीम बाजवा के मुताबिक DG चाइना रेलवे ग्रुप सिन जांग जिंग भी मुबारकबाद पेश की। कराची में तजावुजात पर चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट बरहम पूछा उर्दू बाजार में नाले पर तजावुजात का क्या हुआ, बात हाईलैंड नाले पर कब्जे को गिराएं, आगे जाएं और एक कॉलेज ने कब्जा कर रखा है। खालिद बिन वलीद और क्लिफ्टन रोड पर दरख्त काट दिए, कराची में दरख्त लगाएं। देखते हैं ये रिपोर्ट। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस गुलजार अहमद कराची की सूरत हाल पर शदीद बरहम। रिमार्क्स में कहा कि कराची को घोट बना दिया गया। कहा वफाक को कहें कि इसे आकर ठीक करें। अदालत ने कराची के तमाम नालों की सफाई का काम NDMA को देने का हुक्म दे दिया। एडवोकेट जनरल सिंध ने 3 अगस्त तक नालों की सफाई से मुतल्लिक सूबाई हुकूमत की रिपोर्ट पेश की। चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया कि नालों की सफाई हो रही है तो पानी कैसे भर गया। इस पर एडवोकेट जनरल ने बताया कि नालों में कचरा भरा हुआ था, पानी खड़ा होना ही था। एडवोकेट
एडवोकेट जनरल ने अदालत को बताया कि वजीर आला सिंध नालों की सफाई के काम की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। इस पर जस्टिस गुलजार अहमद ने कहा कि ऐसे ही काम हुआ था जैसे और जगहों में होता है। सिंध हुकूमत नालों की सफाई कर रही थी तो एनडीएमए क्यों आई? एडवोकेट जनरल ने कहा कि पता नहीं एनडीएमए क्यों आई। नालों की सफाई के लिए 30 अगस्त तक वक्त दिया जाए। चीफ जस्टिस ने बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि आप नालों की सफाई की तस्वीरें पेश करके क्या साबित करना चाहते हैं? 2 नालों की सफाई की तस्वीरें दिखाकर कहते हैं कराची साफ कर दिया। जस्टिस इजाजुल हसन ने कहा कि एनडीएमए को नाले साफ करने का कहा है, वो जापान से नहीं आए। सिंध हुकूमत लोगों की मुश्किलात कम करे। आप चाहते हैं हम एनडीएमए को काम करने से रोक दें। अदालत ने नालों की सफाई एनडीएमए से सिंध हुकूमत को देने की इस्तदा मुस्तरद कर। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट जस्टिस गुलजार अहमद ने के इलेक्ट्रिक की रिपोर्ट मुस्तरद कर दी। कहा तमाम सूरत हाल का जायजा इस्लामाबाद में लेंगे। के इलेक्ट्रिक को खरीदने वाली कंपनी की जांच पड़ताल की जाएगी। ये कौन है बिजली बंद करने वाले, हम इन्हें छोड़ेंगे नहीं। देखते हैं ये रिपोर्ट। सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में गैर एलानिया लोड शेडिंग और करंट लगने से हलाकतों से मुतल्लिक केस की समाअत। चीफ जस्टिस एक बार फिर के इलेक्ट्रिक इंतजामिया पर बरहम। कहा कि आधे कराची में बिजली नहीं होती। के इलेक्ट्रिक हुकाम पर बरसे, बोले ये कौन होते हैं बिजली बंद करने वाले? परसों उनको कहा तो कल आधे कराची में बिजली बंद कर दी। के इलेक्ट्रिक के वकील ने कहा कि सर बिजली बंद नहीं हुई थी, जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि लोग मरते हैं और ये जाकर हाई कोर्ट से 50-50 हजार रुपए में जमानतें करवा लेते हैं। लोगों की जिंदगी का मामला है, इनके रहमो करम पर नहीं छोड़ेंगे। करंट से हलाकतों पर के इलेक्ट्रिक के खिलाफ कत्ल के केस बनाए जाएं। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि लोगों को बिजली पानी नहीं मिलता, रहने के लिए जगह नहीं मिलती, बड़े लोग मजे कर रहे हैं। उन्होंने मजीद कहा कि उन लोगों को जेल में कोई मसला नहीं, उनको उस वक्त मसला होता है जब पैसे निकलवाए जाएं। अदालत ने कहा इन्हें भारी जुर्माने लगने चाहिए। कराची में गैर एलानिया लोड शेडिंग से मुतल्लिक मजीद समाअत इस्लामाबाद में होगी। सुप्रीम कोर्ट ने केस की मजीद समाअत 2 हफ्तों तक मुलतवी कर दी। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल कहते हैं कि कराची के मसाइल हल करने के लिए वफाक का सिंध हुकूमत से फ्रेम वर्क पर इत्तफाक ना हुआ तो सख्त कार्रवाई के सिवा कोई चारा नहीं होगा। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल का एक इंटरव्यू में कहना था कि वफाकी हुकूमत कराची को रुलता और पिसता हुआ नहीं देख सकती। ठोस फ्रेम वर्क बना रहे हैं जिसमें सिंध हुकूमत और स्टेक होल्डर्स को शामिल करेंगे। सिंध हुकूमत से फ्रेम वर्क पर इत्तफाक ना हुआ तो सख्त कार्रवाई के सिवा कोई चारा नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट ने गैस इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट सेस केस में कंपनियों को अपीलें मुस्तरद कर दी। अदालत ने कहा कि कंपनियों को गैस इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट सेस की मद में 417 अरब रुपए अदा करने होंगे। देखते हैं इस रिपोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट ने GIDC सेस केस का 20 फरवरी 2020 को महफूज किया गया फैसला सुनाते हुए कंपनियों की अपीलें मुस्तरद कर दी। जस्टिस मशीर आलम ने 3 रुकनी बेंच का 2-1 की अक्सरियत से फैसला सुनाया, जिसमें करार दिया कि कंपनियों को GIDC टैक्स अदा करना होगा। दौरान समाअत खैबर पख्तूनख्वा ने मुखालफत, जबकि पंजाब, सिंध और बलूचिस्तान ने वफाक के सेस टैक्स की हमायत की। गुज़िश्ता हुकूमतों ने गैस पाइपलाइन मंसूबों के लिए सेस के नाम पर टैक्स लागू किया था। हुकूमत ने 290 अरब से ज्यादा रकम इकट्ठी करनी थी, लेकिन ये रकम मंसूबों पर खर्च न हो सकी। सेस के खिलाफ मुख्तलिफ निजी कंपनियों ने पेशावर हाई कोर्ट में दरखास्त दायर की थी। पेशावर हाई कोर्ट ने फैसला दरखास्त गुजारों के हक में सुनाया था, जिसके खिलाफ वफाक ने सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की थी। कंपनियों को गैस इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट सेस की मद में 417 अरब रुपए अदा करना होंगे। इस फैसले से वफाक को 417 अरब रुपए की रकम हासिल होगी। हुकूमत ने ऑर्डिनेंस के जरिए GIDC के 220 अरब रुपए माफ कर दिए। वफाकी वजीर फवाद चौधरी का कहना है कि सरदार उस्मान बुज़ार अपने कद पर नहीं खड़े, उन्हें चीफ मिनिस्टर वजीर आजम ने बनाया। इमरान खान जब कहेंगे तो उस्मान बुज़ार इस्तीफा दे देंगे, अगर इस्तीफा नहीं देंगे तो 24 घंटे में फारिग हो जाएंगे। वफाकी वजीर फवाद चौधरी ने नैब ऑफिस के बाहर हंगामा आराई पर कहा, मरियम नवाज खुद कहती हैं कि लोगों का शिकवा गिला था कि वो खामोश हैं। उन्होंने अपने वोटर्स को कभी तो मुतमईन करना है, 2-4 दिन बाद लोग ये वाक़या भूल जाएंगे। पुलिस निज़ाम में इस्लाहात होनी चाहिए। वज़ीर इत्तलात पंजाब फ़याज़ुल हसन चौहान कहते हैं कि जनूबी पंजाब सेक्रेटरीट के लिए रूल्स ऑफ बिजनेस में तरमीम की मंजूरी दे दी गई, जिसके लिए 16 एडिशनल सेक्रेटरीज जनूबी पंजाब में सेक्रेटरीट में बैठेंगे। तालीम, सेहत, फाइनेंस, ज़राअत, लोकल गवर्नमेंट के अदारे कायम होंगे। मज़ीद खबरें इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा।
वेलकम बैक। जमीयत उलमा इस्लाम फी के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं कि FATF बिल्स के जरिए कौम पर जबर मुसल्लत किया जा रहा है। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए मौलाना फजलुर रहमान का कहना था कि बिल्स पास कराने से कबल अरकान पार्लियामेंट को मुशावरत का वक्त दिया जाता है। अजीब बात है कि स्पीकर कौमी असम्बली चंद जमातों को बुलाकर मशवरा करते हैं। MMA और कुछ दूसरी जमातों को मुशावरत से दूर रखा गया। FATF से मुतालिक 4 कवानीन पर हुकूमत और अपोजिशन में डेडलॉक बरकरार है। अपोजिशन ने मनी लॉन्ड्रिंग से मुतालिक जुराइम को नैब दायरे इख्तियार से निकालने का मुतालबा कर दिया। कहा कि मनी लॉन्ड्रिंग के मामलात नैब को दिए तो सियासतदानों के खिलाफ इस्तेमाल हो सकते हैं। एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट तरमीम में नैब के इख्तियारात खत्म करने पर साथ देंगे। इन्वेस्टिगेशंस की पावर सिर्फ इंटरपोल के पास है और वो भी उसी हुकूमत से उसी मुल्क से कराता है। लेकिन जब आके आप FATF की टीम पाकिस्तान में बैठ के इन्वेस्टिगेट करती है, वो सारे कागजात बुलाती है, हमारी मिनिस्टरों को बुलाती है, हमारे सेक्रेटरीज को बुला के खड़ा करके ऐसे मुल्ज़िमों की तरह क्वेश्चन करती है, वो हमें पसंद नहीं है। क्या यही क्वेश्चन ये अपने यूरोपियन यूनियन के मुल्कों में करते हैं? क्या ये अपने अमेरिका में जाके करते हैं? क्या ये दूसरे मुल्कों में भी किया किसी जगह पे? सिर्फ 8 बेचारे जो मजलूम हैं, IMF के हाथ चढ़े हुए हैं, उनके साथ ये सब कुछ हो रहा है। इसलिए मैंने ये क्वेश्चन उठाया, पिटीशन मैंने बनाई है। कल एक मेरा आर्टिकल है, वो पढ़ लें। आर्टिकल आने के बाद उसी में मैं अपील भी कर रहा हूँ कि मुझे लीगल फ्रेटर्निटी मेरे साथ आए, क्योंकि इस वक्त वो वक्त है कि हमें आने वाले वक्त में बचाना है। कि मुझे शक पड़ रहा है कि सारे बिल भी हम पास कर देंगे, फिर भी हो सकता है FATF हमारी बात न माने। इसलिए ना माने कि उनका तो मकसद ही कुछ और है, उनको चलाने वाली को और है। मुझे एक सिर्फ चीज़ है कि एक ब्लॉक बनता है और IMF है, और IMF बनती है इन 7 मुल्कों में बनती है, 7 मुल्क बनाते हैं। वो एक बिजनेस क्लब को एक इन्वेस्टिगेटिव चेयरमैन NDMA मोहम्मद अफजल खान ने खबरदार किया है कि कोरोना वबा खत्म नहीं हुई, शहरी एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें। आलमी इदारों ने पाकिस्तान के कोरोना के खिलाफ इक़दामात की तारीफ की। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए चेयरमैन NDMA मोहम्मद अफजल का कहना था कि पाकिस्तानी अवाम और हुकूमत चीन के ताउन पर शुक्रगुजार हैं। अपने भाइयों से ये और बहनों से, बच्चों से, बड़ों से ये दरख्वास्त करूँगा कि ये मरहला कोविड का भी ख़त्म नहीं हुआ, ये रेस जारी रहेगी। इसलिए जब भी बाहर निकलें एहतियात करें, एक दूसरे से समाजी फासला रखें और मास्क इस्तेमाल करें ताकि इस बीमारी को हम अपने कंट्रोल में रख सकें। जैसे कि आपको पता होगा कि कुछ मुल्कों में ये बीमारी जो है दोबारा आ गई है, तो इससे बचने का एक तरीका यही है। मैं आपको ये भी खुशखबरी दे दूं कि FAO की रिपोर्ट, वर्ल्ड फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन जो यूनाइटेड नेशन की है, उसकी रिपोर्ट ये है कि पाकिस्तान ने पिछले 1 महीने के अंदर बहुत कम तादाद में लोकस रह गया है। अगर इसको आप इंडिया के साथ कंपेयर करें तो ना होने के बराबर है। तो ये अल्लाह पाक का ख़ास करम हुआ है कि ना लोकस बहुत बड़ा है और ना कोविड जो है वो दोबारा बढ़ने के चांसेस हो रहे हैं। और पाकिस्तान में कोरोना से 24 घंटों में मजीद 10 मरीज इंतकाल कर गए। अमवात की तादाद 6139 हो गई। मजीद 753 अफराद में वायरस की तशखीस से मरीज 2,86,663 हो गए। 783 मरीजों की हालत तशवीशनाक, जबकि 2,64,000 मरीज सेहतयाबी हो चुके हैं। पाकिस्तान में कोरोना मरीजों ने 24 घंटों में 10 मरीज मजीद जिंदगी निकली। कोरोना ने सिंध में 2,297, पंजाब में 2,179, खैबर पख्तूनख्वा में 1,235, बलोचिस्तान में 138, गिलगित बल्तिस्तान में 58 और इस्लामाबाद में 173 मरीज अब तक इंतकाल कर चुके हैं। कौमी एहतसाब ब्यूरो ने पार्कलैंड रेफरेंस में आसिफ जरदारी केस के खिलाफ ज़िमनी रेफरेंस दायर करने का फैसला कर लिया। ज़िमनी रेफरेंस में मजीद शवाहिद अदालत के सामने पेश किए जाएंगे। पार्कलैंड रेफरेंस में साबिक सदर आसिफ अली जरदारी समेत मुल्जिमान पर 10 अगस्त को फर्द जुर्म आयद की गई। और अब टुडेज इंटरनेशनल।
अफगान सूबे कंधार में धमाके से खातून और 3 बच्चे जाँ बहक हो गए। धमाके में 6 अफराद जख्मी हो गए। सूबे कंधार के जिला पंजवाई में सड़क किनारे बारूदी मवाद से गाड़ी टकराने से धमाका हुआ, जिसके नतीजे में 1 खातून और 3 बच्चे जाँ बहक हो गए। धमाके में 4 बच्चे, 1 खातून और 1 मर्द भी शामिल है। बांग्लादेश में सैलाब से जाँ बहक होने वालों की तादाद 200 से तजावुज कर गई। लाखों अफराद इमदाद के मुंतजिर हैं। मूसलाधार बारिशों के बायस सैलाब से बांग्लादेश का 1/3 हिस्सा मुतासिर हुआ। ढाका डिवीजन में बड़े पैमाने पर तबाही हुई। सैकड़ों घर तबाह और हजारों मवेशी पानी में बह गए। लाखों अफराद बेघर हो चुके हैं। मुतअद्दिद दरियाओं में पानी की सतह इंतहाई बुलंद हुए। और अब टुडे स्पोर्ट्स।